వచ్చే వచ్చే రా కూర్చోబెడతాం. ఆడికి ఎంత చెప్తే వదిలేడు. వీడియో చేయడం కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది. కింద వచ్చింది ఆడికి నిలిచి ఉంటుంది కదా. Formation leader today is Group Captain Alok Ella with trooping the national flag and formatting on it. The helicopters are carrying the insight of the armed forces. The helicopter from Manchline Helicopter Unit proudly flying with the unit's motto, Shaurya Sarva Dharmanam Dharma, which implies valor is the essence of all virtues. Seva Medal, General Officer Commanding Headquarters Delhi Area, General Hamid, दूसरी पीढ़ी के अधिकारी 16 दिसंबर ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया का प्रभार संभाल रहे हैं। सलामी मंच से राष्ट्रपति को एक सम्मानजनक सैल्यूट देंगे। दृष्टि स्थिर, मुद्रा अडिग और यह दृश्य राष्ट्रभक्ति और देश की गर्व की पराकाष्ठा करता हुआ
जनरल Following the parade commander is the parade second in command, Major General Sumit Mehta, Vishisht Seva Medal, commissioned into 44 Armored Regiment and alumnus of the Nobili School, Dhanbad, St. Michael's School, Patna, NDA and IMA. The general officer has served in Siachen on the line of control and along the western borders. Appointment as aide-de-camp to the Chief of Army Staff, Battalion Commander at IMA, staff appointments in the Mechanized Forces Directorate and MS Branch at Army Headquarters, UN Mission in Syria and Israel, student of Technical Staff Officers Course, Higher Air Command Course, and NDC Nairobi, a proud recipient of the Army Commanders and Chief of Army Staff Commendations, as also the Vishisht Seva Medal. The General Officer assumed appointment of Chief of Staff Headquarters, Delhi area on 4th of November 2023. साहस से है चित विकसित इनका, विशाल वक्ष से शोभित तरुणाई। भारत माँ की ललकार सुन, हुए तत्पर ये सदा। कराल काल को देकर चुनौती, अपना फर्ज किया अदा। जूझे चुनौतियों से, आने ना दी कुछ आँच वतन पर। सीने पर हंस गोली खाई, कर्तव्य में रहे अडिग सदा। छूकर बुलंदियां, गर्वित हम सबको किया। वंदन आपको हमारा। और ये आपके सामने देवी और सजनों, सर्वोच्च बहादुरी पुरस्कार परमवीर चक्र एवं अशोक चक्र से सम्मानित विजेता सूबेदार मेजर ऑनररी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, परमवीर चक्र सेवानिवृत्त। सूबेदार मेजर संजय कुमार, परमवीर चक्र 13 जम्मू एवं कश्मीर राइफल्स। लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह, अशोक चक्र सेवानिवृत्त। परमवीर चक्र युद्ध में असाधारण वीरता का परिचय देते हुए जान की बाजी लगाने वाले सैनिकों को प्रदान किया जाता है। अशोक चक्र भी अन्य परिस्थितियों में असाधारण वीरता का प्रदर्शन और सर्वोच्च बलिदान देने वाले शूरवीरों को प्रदान किया जाता है। Marching proudly onto the grand stage of this parade, ladies and gentlemen, let us welcome Gendarang Suling Chanka Lokananta, a 190-member ensemble band from the Indonesian Military Academy, embodying discipline and military tradition. The unique blend of military music reflecting the spirit and honor of the Academy. The name Chanka Lokananta, ladies and gentlemen, carries a profound meaning. Chanka originates from Sanskrit, meaning trumpet, while Lokananta means heavenly sound. The band comprises of several musical instruments, including snare drums, tenor drums, bass drums, trombones, trumpets, flutes, and metallophones for that distinct metallic sound, creating a melody that echoes Indonesia's rich heritage. India and Indonesia, side by side, in harmony and friendship, our hearts reside. विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के उत्सव पर कर्तव्य पथ की गरिमा को अपने कदमों से सम्मानित करता इंडोनेशियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का संयुक्त मार्च दस्ता 152 सैन्य कैंपों से बना TNI भूमिका तुल्य जलविका यानी विविधता में एकता की भावना है। भारत और इंडोनेशिया के पौराणिक काल से चले आ रहे अटूट बंधन, साधु संस्कृति और परंपरा का यह मार्च दस्ता रामायण की गाथाएं जहाँ आपसी प्रेम और सद्भाव का देश भारत और इंडोनेशिया दो महान नेताओं का संगम से हिंद महासागर से जोड़ रखा है और पौराणिक संस्कृति में आपसी सदियों पुराना रिश्ता आज एक नया अध्याय होता हुआ और राष्ट्रीय हित गर्व से हमारे अन्य ऐतिहासिक व्यापारिक और हमारी विविधता छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप जैसे योद्धाओं की याद दिलाता पहला मार्चिंग दस्ता 61 कैवलरी के घुड़सवार योद्धाओं का कमान लेफ्टिनेंट आमान कुमार के सशक्त हाथों दुनिया के एकमात्र सक्रिय घुड़सवार रेजिमेंट जिसने 1918 में खालसा की लड़ाई में तुर्कों का मुकाबला
39 युद्ध सम्मानों से सुसज्जित ऐसी रेजिमेंट जिसने घुड़सवारी और पोलों में देश का परचम विश्व पटल पर ऊंचा और ऊंचा किया। आदर्श वाक्य अश्व शक्ति यशोबल। इस रेजिमेंट ने पूरी दुनिया में एक गौरवशाली स्थान हासिल किया है। एक सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, 12 अर्जुन पुरस्कार, 6 विशिष्ट सेवा पदक, 56 सेना दैट प्रशस्ति पत्र के साथ साथ कई अन्य पुरस्कारों से सम्मानित। आज देश के गणतंत्र की शान में आयोजित समारोह के अवसर पर मैकेनाइज दस्तों का नेतृत्व करता मुख्य युद्धक टैंक T90 भीष्म नेतृत्व 74 आर्मर्ड रेजिमेंट के कैप्टन नवजोत सिंह कर रहे हैं। T90 भीष्म भारत की अत्याधुनिक सैन्य शक्ति का प्रतीक है, जिसे हंटर किलर अवधारणा पर डिजाइन किया गया है। इसको विकृत कर देती है। यह टैंक 74 आर्मर्ड रेजिमेंट का है और इस रेजिमेंट का इतिहास समृद्ध और गौरवशाली है। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य विजय या वीर गति। और अब आपके सामने इस्लामी मंच की ओर बढ़ता हुआ भारत की सामरिक शक्ति का प्रतीक नामिस और BMP-2 सारथ की टुकड़ी टुमारोज आर्म ऑन टुडेज आर्मी के रूप में परिकल्पित नेतृत्व 17th बटालियन मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट ऋतिक चौधरी के हाथों में नामिस एक टैंक विध्वंसक भारतीय नवाचार की शक्ति का परिचायक है। यह 5 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के टैंक को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। इसमें नाविका ट्रैक आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल शामिल है, जिसमें क्रूलेस टर्रेट है, जो कि 6 नाव एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को फायर करने में सक्षम है। आदर्श वाक्य 17 में हर मैदान फतेह। अब टूटी बाधाओं को सहकर हम सामना कर रहे हैं डटकर। अब राह में न रुकते हैं हम मंजिल पर पहुंचकर। और नाविक के ठीक पीछे देवी और सजदों BMP-2 सारथ नेतृत्व मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट की 6वीं बटालियन के लेफ्टिनेंट सौरभ प्रताप सिंह के हाथों में सारथ जल थल में सक्षम उपकरण 30 मिलीमीटर की स्वचालित तोप, 7.62 मिलीमीटर की पिकेट मशीन गन और कॉम्पस एंटी टैंक मिसाइल से लैस है। सारथ की मारक क्षमता 4 किलोमीटर तक है। यह रात के समय में भी ऑपरेशन के लिए सक्षम है एवं भारतीय सेना की क्षमता का अद्वितीय उदाहरण है। Rolling next on Kartavya Path is the line of detachment infantry column showcasing India's advanced military capabilities. These indigenously produced armored vehicles excel in mobility and protection and are already serving in the United Nations peacekeeping operations. To begin with, we first have the all-terrain vehicle Chetak, led by Captain Lakshesh Sihag, and specialist mobility vehicle Kapitwaj, led by Nayak Subedar Charan Singh. These vehicles are designed for maneuvering in tough terrain, especially in the high altitude regions. Following these, we have the light specialist vehicle Bajrang and the vehicle mounted infantry mortar system Airavat, led by Lieutenant Abhijit Elawar and Subedar Satveer Singh, offering enhanced protection and firepower for high intensity combat. The parade also features the Quick Reaction Force Vehicle Heavy, also called as Nandi Ghosh, signifying the chariot of Lord Jagannath, symbolizing strength and valor. It is led by Major Radhika Sen. We also see the Quick Reaction Force Vehicle Medium, also called Tirupurantak, signifying the chariot of Lord Shiva, exemplifying invincibility and unparalleled strength. It is led by Major Shishi Sharma. पहरेदार हिमालय के हम झोंके हैं तूफान के। जी हाँ,
सुनकर गरज हमारी सीने फट जाते चट्टान के। मैकेनाइज्ड कॉलम्स के क्रम में कैप्टन सूरज सिंह के सशक्त नेतृत्व में अगला दस्ता 344 मिसाइल रेजिमेंट की सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल 400 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ दुश्मन के खेमे में खलबली मचाने वाली विनाशकारी मिसाइल 344 मिसाइल रेजिमेंट एक ऐसी युवा रेजिमेंट जिसकी स्थापना के अल्प समय में कई उपलब्धियां अपने नाम की। आदर्श वाक्य सबसे आगे सबसे तेज। इसके बाद कर्तव्य पथ पर लेफ्टिनेंट तुषार तोमर के नेतृत्व में 301 रॉकेट रेजिमेंट से पिनाका मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम की टुकड़ी स्वदेशी रूप से विकसित और भगवान शिव के पौराणिक धनुष के नाम पर पिनाका अपार विनाशकारी शक्ति और लंबी दूरी की सटीकता का उदाहरण है। आदर्श वाक्य वीरावेल वेट्रीवेल विजय भाला साहसी भाला। And next in the mechanized column is the formidable BM-21 Agnibaar, a 122mm multi-barrel rocket launcher that has been a crucial part of Indian artillery. Leading this impressive display is Captain Manoj Chonial of the 213 Rocket Regiment. During the 99 Kargil War, this Agnibaar proved its ability by delivering a salvo of 40 rockets in just 20 seconds and played a key role in neutralizing enemy positions on high altitude ridges. Approaching the saluting dais next is the equipment of DGIS. The battlefield surveillance system, the latest state-of-the-art integrated surveillance system in the armory of the Indian Army. Indigenously developed by the Indian Army and Bharat Electronics Limited, the BSS had the ability to integrate all ground-based and aerial-based sensors on a common grid. BSS planes of 134 SATA Regiment, commanded by Lieutenant Colonel Shrutika Datta of DGIS, BSS Mountains, commanded by Major Vikas of 621 SATA Battalion. Cutting-edge analytics makes the new BSS a force multiplier ready to be exploited. पत्थरों को ठोकर से उड़ा दो, चट्टान आए राह में तो सीने से हटा दो। आए अगर कोई बाधा तो बढ़कर मैं करूं मुकाबला। आग बनकर मैं आंधियों के पंख दूं जला। मैं हूं 10 मीटर शॉर्ट स्पैन ब्रिज, पूर्ण रूप से स्वदेशी, तेजी से तैनाती के लिए डिजाइन। यह ब्रिजिंग सिस्टम सेना की नदियों और नालों जैसी बाधाओं को पार करने में सक्षम है। 9.5 मीटर तक के अंतराल को कम करने एवं 70 टन के टैंकों का वजन उठाने में सक्षम। यह ब्रिजिंग सिस्टम 10 मिनट में तैनात किया जा सकता है। नेतृत्व 9 रैपिड इंजीनियर रेजिमेंट के मेजर के जॉन अब्राहम और 234 आर्मर्ड इंजीनियर रेजिमेंट के कैप्टन जगजीत सिंह द्वारा। 9 रैपिड का आदर्श वाक्य 9 आपके लिए है और इसका कोई मुकाबला नहीं। Next we witness the impressive Akash weapon system commanded by Lieutenant Himanshu Singh Chauhan from the 27th Air Defence Missile Regiment and Captain Sharmish Thakur of 50 Light Air Defence. The successful development and induction of the Akash weapon system signifies a major leap towards self-reliance in defence production in line with the Make in India initiative envisioned by our Prime Minister. The regiment upholds the motto of the Army Air Defence, Akash hai Shatru Jahi, which translates to defeat the enemy in the sky, highlighting its critical role in safeguarding the India's airspace. This advanced system has already been inducted into both the Indian Air Force and the Indian Army, strengthening our defence capabilities. The Akash weapon system is India's first indigenously developed air defence system capable of firing short-range surface-to-air missiles to neutralize the enemy aerial platforms. With an impressive surveillance range of up to 150 kilometers, it can engage hostile aerial targets as far as 25 kilometers. देश की रक्षा आत्मनिर्भरता की सशक्त तस्वीर कर्तव्य पथ पर एक मैकेनाइज्ड दस्तों के बाद अब भारतीय सेना के शूरवीर अपने सैन्य अनुशासन एवं प्रतिबद्धता का जलवा कर्तव्य पथ पर बिखेरने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इनका अंदाज दुनिया से निराला है। जिन खतरों से डर जाते हैं लोग, उन्हें इन्हीं खतरों ने पाला है। कैप्टन रविंद्र भारद्वाज के नेतृत्व में सलामी मंच की ओर अग्रसर पहला गौरवशाली मार्चिंग दस्ता ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स लाल रंग की वर्दी कर्तव्य पथ पर सूरज की लालिमा बिखेरते हुए आजादी से पहले और बाद कई संघर्षों में अमूल्य योगदान, 2 परमवीर चक्र, 3 अशोक चक्र, 1 पद्म भूषण के अलावा कई सम्मानों से अलंकृत। आदर्श वाक्य पहला हमेशा पहला, युद्ध घोष गरुड़ का हूँ बोल प्यारे।
The power of a military band lies not just in its exemplary music, but in its ability to rally hearts and embolden spirits. Now displaying some exemplary military music, we have the combined military band of Mechanized Infantry Centre and School, Punjab Regimental Centre and Rajput Regimental Centre, comprising of 73 musicians. The band is led by Subedar Major Rajendra Singh of Punjab Regimental Centre and assisted by Subedar Major Shantaram Badkar of Mechanized Centre and School, Subedar Major Sanjeev Kumar of Punjab Regimental Centre and Naib Subedar Lakshman Singh of Rajput Regimental Centre. The band is playing the act tune of Samvidhan. भारतीय सेना की शान और मान से आगे बढ़ता यह दस्ता जाट रेजिमेंट का 200 वर्षों के गौरवशाली इतिहास की साक्षी जाट रेजिमेंट के इस दस्ते की कमान कैप्टन अजय सिंह गरसा के हाथों में। रेजिमेंट को 5 युद्ध सम्मान, 3 अशोक चक्र, 8 महावीर चक्र, 13 कीर्ति चक्र, 39 वीरता चक्र, 57 शौर्य चक्र सहित अन्य कई सम्मान प्राप्त। आदर्श विभाग, संगठन एवं वीरता, युद्ध घोष, जाट बलवान, जय भगवान। Stepping forward in perfect harmony, the Garhwal Rifles, led by Lieutenant Rohit Lakshman Kudache. The Garhwal Rifle is one of the most illustrious and decorated infantry regiments of the Indian Army. The Jawans of the Garhwal Rifles hail from 7 districts of the Garhwal region. The regiment has rendered loyal and sterling service ever since its inception. The regiment took active part in both World Wars and was bestowed with a sizable number of battle honours, including 3 Victoria Crosses. Motto: Yuddhe Krit Nishchaya, War Cry Badri Vishal Lal Ki Jai. चले हम सक्षम सेनानी, सीना ताने, वाद्य यंत्र बजाते, पांव बढ़ाते, मन मुस्काते, गीत गाते। जी हाँ, आपके सामने देवी और सज्जनों, बड़ी शान से वाद्य यंत्रों के माध्यम से कदम कदम बढ़ाए जाकर जोशीली धुन से उत्साह का समंदर कर्तव्य पथ पर बिखेरते हुए सिखलाई रेजिमेंटल सेंटर, बिहार रेजिमेंटल सेंटर, लद्दाख स्काउट रेजिमेंटल सेंटर के जांबाजों का संयुक्त बैंड दस्ता, नेतृत्व सूबेदार ऑनरी कैप्टन कृष्ण बहादुर छेत्री, नायब सूबेदार जतेंद्र सिंह, सूबेदार अरुण कुमार एवं सूबेदार सेरिंग। The next contingent is the Maha Regiment, led by Captain Aman Kumar Singh. It was formed on 1st October 1941 by the efforts of Dr. Bhimrao Ambedkar. The Maha Regiment has been honored with 12 theatre honours and 9 battle honours, bearing testimony to the peak performance. The motto of the regiment is Yash Siddhi and the war cry is Bolo Hindustan Ki Jai. न कोई थकान न किसी डर का आभास, बस अपने कर्तव्य और निष्ठा में अपार विश्वास। वो हर गहरी खाई और ऊंची ऊंचाई की पहरी है, देश की माटी में तिरंगे के रंगों में दीप आस्था कर्तव्य तब तक जब मेरा कश्मीर राइफल्स की टुकड़ी बड़े शान से आगे बढ़ रही है। दस्ते का नेतृत्व जब मेरा कश्मीर राइफल्स की 18 बटालियन टीनेजर विक्रमजीत सिंह के हाथ में। यह रेजिमेंट डोगरा राज्य के महाराजा गुलाब सिंह द्वारा राज्य बलों के तौर पर सारी 1820 में गठित की गई। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य सशस्त्र रणवीरता युद्ध घोष दुर्गा माता की जय। A military band does not just play music, it tells the story of times of courage, honor and valor. Stepping forward in perfect synchronization with melody and power of military music, we have the combined military band of 14 Gorkha Training Center, Artillery Center Nasik and 3 Electronics and Mechanical Engineers Center comprising of 73 musicians. The band is led by Subedar Major M. Chandradat of 3 EME Center and assisted by Naib Subedar Santa Bahadur Guru, Naib Subedar Dhanji Paswan and Naib Subedar Ramesh Kumar Parihar. The band is playing the tune Groove. Heads held high, spirits unyielding, the next marching contingent is of the Corps of Signals led by Captain Ritika Khareta, leading the contingent of the brave and dedicated. Keeping up with the pace of technical advancements in the 21st century, the Corps of Signals has effectively achieved electronic and information superiority to empower the Indian Army. Leaders in electronic and information dominance, they have been conferred with 189 prestigious honours including 2 Padma Shri,
Approaching the saluting dais now is the world-renowned band of the Indian Navy, led by Master Chief Petty Officer Musician First Class M. Anthony Raj, playing the tune of the Indian Navy song Jai Bharati. For the very first time, ladies and gentlemen, the band includes 6 women musicians. To its tune is marching the naval contingent of 144 smart and immaculate personnel, marching shoulder to shoulder on the historic Kartavya Path, symbolizing Indian Navy as a combat-ready, credible, cohesive and future-ready force. The contingent is led by Lieutenant Commander Sahil Ahluwalia as Contingent Commander and Lieutenant Commander Indresh Chaudhary, Lieutenant Commander Kajal and Lieutenant Devendra as platoon commanders. At the vanguard of the naval marching contingent is the naval tableau, which advocates a strong, Atmanirbhar Navy, capable of protecting India's maritime interests and protecting India's sea power across thousands of miles. नौसेना की छाती हाल ही में शामिल किए गए बड़े फ्रंटलाइन अत्याधुनिक युद्धपोतों को दर्शाया गया है, जिसमें डिस्ट्रॉयर INS सूरत, फ्रिगेट INS नीलगिरी और पंखड़ी INS वार्षिक शामिल है, जिन्हें हाल ही में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 15 जनवरी को समर्पित किया गया। ये शक्तिशाली युद्धपोत न केवल स्वदेशी युद्धपोत डिजाइन और निर्माण में भारत की प्रगति को उजागर करते हैं, बल्कि भारत के समुद्र हितों की रक्षा करने के कहीं एक मजबूत और आत्मनिर्भर रक्षा परिस्थिति को मजबूत करता है। Ladies and gentlemen, next on Kartavya Path, a wave of blue. Proud air warriors of the Indian Air Force. Marching ahead and swaying to their melodious tunes, we first have the Indian Air Force Band. With steady steps, marching fearless and true, the guardians of the sky, adorning blue. Pride of the nation, heads held high, they march with glory, they touch the sky. First off, the Indian Air Force Band, consisting of 72 musicians, consisting of 22 Agniveers and 3 drum majors, led by Sergeant Charles Anthony Daniel. और वायुसेना बैंड के ठीक पीछे वायुसेना का मार्चिंग दस्ता स्क्वाड लीडर महेंद्र सिंह की अगुवाई में। वायुसेना दस्ते के अन्य अधिकारी फ्लाइट लेफ्टिनेंट नेपो मुराइथम, फ्लाइट लेफ्टिनेंट देशमुख दामिनी और फ्लाइंग अफसर अभिनव जोशी। कर्तव्य पथ पर नीली वर्दी वालों का यह दल बड़ी शान से आगे बढ़ता हुआ అందుకే వదిలేడు వాయుసేనతో రాగానే ఫ్లైట్ धरा जो गगन ये पर्वत ये सागर, हर कोने में गूंजता है उनकी कसम का आगर, हर तिरंगे की लहर में उनकी सांस चलती है, हर सुबह उनकी प्रतिज्ञा के साथ। कर्तव्य पथ पर समर्थ भारत सक्षम सेना की ओजस्विता का संचार करती हुई डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स भारत के सशस्त्र बलों, थल सेना, वायुसेना और नौसेना के अभूतपूर्व समन्वय यानी सैन्य शक्ति का जय घोष करना। प्रारंभिक भागों एक जॉइंट ऑपरेशन ग्रुप के साथ
प्रवेश, जय हो भारत देश। और अब भारतीय समुद्री सीमाओं को हर खतरे से सुरक्षित रखने के लिए मुस्तैद तैनात भारतीय तटरक्षक बल का मार्चिंग दस्ता, यह समुद्र की प्रहरी। इस दस्ते का नेतृत्व कर रही है लेफ्टिनेंट कप्तान नमिता ठकरा। भारतीय तटरक्षक बल समुद्री ऑपरेशनल अभियानों में महिलाओं को तैनात करने वाला सर्वप्रथम बल है। आंतरिक सुरक्षा हो या प्राकृतिक आपदा हो, भारतीय तटरक्षक बल सदैव तत्पर। आदर्श वाक्य स्वयं रक्षा में। Following the marching contingent, the tableau of the Indian Coast Guard led by Commandant Sonia Singh and Commandant Sam Martin. It focuses on coastal security and maritime search and rescue. The tableau showcases an indigenously built interceptor boat, an advanced light helicopter, also depicting a maritime search and rescue coordination center. The tableau highlights the indigenously manufactured technology and coordinated operations, symbolizing Indian Coast Guard's life-saving efforts. A stranded fisherman signaling for help shows that the Indian Coast Guard is prepared to handle all emergencies at all times. Ladies and gentlemen, approaching the saluting dais, we have the tableau of India's pride Defence Research and Development Organization displaying Raksha Kavach, led by Mr. Sachin Kumar, scientist E. This futuristic warfare technology, Raksha Kavach, is showcased and it reflects the defense preparedness to counter threats emerging from air, ground and underwater. In the front, you're witnessing a seeking helicopter detecting a submerged submarine and releasing a torpedo to destroy it. This is followed by a multi-layered air defense system protecting our ground and airspace from adversary threats. और रक्षा कवच के बाद अत्याधुनिक एवियोनिक्स और गाइडेंस सिस्टम के साथ स्वदेशी रूप से विकसित प्रलय हथियार प्रणाली, जिसे रिसर्च सेंटर इमारत DRDO द्वारा विकसित किया गया है। प्रलय एक सतह से सतह पर मार करने वाला सामरिक हथियार है, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर से अधिक है और इसे युद्ध के मैदान में विभिन्न लक्ष्यों को अचूक और सटीक निशाने से बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रणाली का नेतृत्व परियोजना निदेशक डॉक्टर आर श्रीनिवासन, साइंटिस्ट जी, और उप परियोजना निदेशक श्री डी रवि कुमार, साइंटिस्ट ई कर रहे हैं। Marching smartly with impeccable precision, the mixed contingent of gallant soldiers of the Assam Rifles, this magnificent force, aptly called the Sentinels of the Northeast, have always been the first responders in all eventualities in Northeast India, earning them adulations and the title of Friends of the Northeast. Led by Captain Karamveer Singh Kumbawat of 29 Assam Rifles, comprising soldiers recruited from all over the country, it has to its roll of honor 4 Ashok Chakra, 33 Kirti Chakra and 5 Veer Chakra. The Assam Rifles, the oldest and the most decorated paramilitary force of the country. Marching in unison, the Assam Rifles band proudly playing the Assam Rifles song, Assam Rifle ke Sipahi, Desh ki humne shaan badhai. The Assam Rifle brass band consisting of 105 musicians, including 22 women of Mahila Pack Band led by Warrant Officer Jaimin Guru, motto Kartavyam Sarvottam, war cry Durga Mata Ki Jai. कर्तव्य पथ पर चलती छाया, तप्त चरणों की यह गाथा, हर रणभूमि में गूंजे उनकी ध्वनि, विजय का है जिनका नाता। देखिए और सज्जनों, देखिए कर्तव्य पथ पर CRPF का बैंड दस्ता इंस्पेक्टर शमशेर लाल के नेतृत्व में यह बैंड देश के हम हैं रक्षक की जोशीली धुन बजा रहा है। इस बैंड दस्ते में 51 पुरुष सैन्य कर्मी एवं 49 महिला सैन्य कर्मी की उपस्थिति देखी जा सकती है। मधुर धुन होता हुआ बर्फ के घने पहाड़ों में जहाँ सांसें जहाँ हर एक कदम एक संघर्ष है, हर लम्हा परीक्षा, वहाँ होता अडिग होते हैं आपके लिए हमारे लिए हर दर्द और वो बैंड के ठीक पीछे
Next, Next on Kartavya Path, we have the listening the crimson of Railway Protection Force Band, proudly led by Head Constable Suresh Ramseni. The brass band consists of 22 personnel playing the tune "We Said." Right behind them, we have the Railway Protection Force marching contingent, which is approaching the saluting dais. Proudly led by Divisional Security Commissioner Aditya, the RPF contingent today at Kartavya Path showcases vigilance, strength and service, reflecting its critical role in securing Indian railways and contributing to national progress. The force is committed to the safety, security and facilitation of traveling passengers, including children, women and elders. Motto of the force is Seva Hi Sankat. अब गणतंत्र दिवस परेड में दूसरी बार अब मेरा दिल्ली पुलिस का महिला बैंड बजता, दिल्ली पुलिस गीत की मधुर धुन बजाता हुआ। बैंड का नेतृत्व बैंड मास्टर कांस्टेबल मुंगला पीरसे कर रही है। इस दस्ते में 4 सब इंस्पेक्टर, 15 कांस्टेबल भाग ले रहे हैं। दिल्ली पुलिस का महिला बैंड दस्ता दिल्ली पुलिस गीत की मधुर धुन पर कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए और महिला बैंड दस्ते के बाद उसके ठीक पीछे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऋषि कुमार सिंह IPS के नेतृत्व में लाल और सुनहरे साफे के साथ आकर्षक वेशभूषा में दिल्ली पुलिस का मार्चिंग दस्ता 1950 से आज तक लगातार गणतंत्र दिवस परेड में भाग ले रहे इस दस्ते ने 16 बार सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते का पुरस्कार प्राप्त किया है। आदर्श सेवा, शांति, सेवा और न्याय। और ये देखिए राजस्थान की शान, पकवान, क्या बात, क्या चाल, क्या अंदाज, नजर ना लगे किसी। ये है सीमा सुरक्षा बल के भरोसेमंद साथी, जिनको रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। थार मरुस्थल की चिलचिलाती गर्मी हो या गुजरात का कच्छ का रण, हम केसरिया, साफा, कलगी, अजगर, गोटा, मोरी, समरस, झालर, शीशे वाला मोहब्बत, पीतल की टेमरी, घुंघरू इत्यादि राजसी वेशभूषा पहनकर शाही अंदाज में इख्तिताम कर चलते और सबका मन मोह लेते हैं। हम हैं सीमा सुरक्षा बल का ऊंट सवार दस्ता, डिप्टी कमांडेंट मनोहर सिंह खींची के नेतृत्व में इनका साथ दे रहे हैं इंस्पेक्टर शिव सिंह। कदम से कदम, दिल से दिल मिला रहे हैं हम, वतन में एक नया चमन खिला रहे हैं हम। हमारी बाजुओं में आंधियों का जोर है, हमारी धड़कनों में बादलों का शोर है, हमारे हाथों में वतन की बागडोर है। न बच के जा सकेंगे जिनके दिल में चोर है। और अब ऊंट सवार दस्ते के ठीक पीछे दुनिया में अपनी तरह का एकमात्र सीमा सुरक्षा बल का ऊंट बैंड दस्ता, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर अलग चट्टोपाध्याय। ये बैंड हमें सीमा सुरक्षा बल बहादुरों का दल की मधुर धुन बजा रहे हैं। ढाला है हमको बिजली ने, तूफानों ने पाला है, मुट्ठी में तूफान बंधा है और प्राणों में ज्वाला है। अब पुरानी जंजीरों को हम तोड़ चुके हैं, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। हर मरुस्थल पर हम तिरंगा लहरा चुके हैं। नया रूप है, नई है उमंगे, अब नई है हमारी तस्वीर और नई है कहानी। हम हैं सीमा सुरक्षा बल के भरोसेमंद सेनानी, आदर्श वाक्य, जीवन पर्यंत कर्तव्य। युवा जुनून कुछ नया कर दिखाने का संकल्प देश को सर्वोच्च शिखर पर ले जाने का। जम्मू कश्मीर और लद्दाख निदेशालय के सीनियर ऑफिसर एकता कुमारी के नेतृत्व में अगला मार्चिंग दस्ता राष्ट्रीय कैडेट कोर की छात्राओं। इसमें नेशनल कैडेट कोर के सभी निदेशालयों की 148 छात्रा कैडेट शामिल हैं। नेशनल कैडेट कोर आज 20 लाख कैडेट्स के साथ देश की अपनी
बुलंद उपस्थिति दर्ज करा रहा है और उसमें 40% छात्राएं पर्वतारोहण हो, राफ्टिंग हो, पैराग्लाइडिंग हो और साहसिक गतिविधि में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है भारत की ये युवा छात्राएं। और इसके ठीक पीछे सशक्त कदमों से मंच की तरफ बढ़ता हुआ नेशनल कैडेट క్యాప్ ఎందుకు తీస్తున్నారు? जानी पहचानी धुन क्या यहाँ ठीक और? कदम कदम बढ़ाए जा, उसी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की हम पे बिताए। शेर हिंद आगे बढ़, मरने से तू जरा न कर, उड़ा के दुश्मनों का सर, जोशे वतन बढ़ाए जा, ये जिंदगी है कौम की कौम पे बिताए जा। और अब कर्तव्य पथ पर बॉयज की टुकड़ी कमांडर सीनियर अंडर ऑफिसर विशाल प्रकाश महाराष्ट्र निदेशालय, इसके अंतर्गत 148 युवा स्मर्ट कैडेट्स मार्च करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसको एनसीसी के सभी 17 निदेशालयों से चुना गया। కాదయ్యా డీసీపీ देश के युवाओं की प्रतिभा को तराश कर जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए ఎవడు చెప్పాడే ఆ డీసీపీ ఆడు युवा जो विकसित भारत के सपनों को साकार करने में अग्रणी भूमिका निभा रहे। खेल और साहसिक गतिविधियों में भी इन कैडेट्स ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर देश का परचम पूरी दुनिया में लहराया। युवा शक्ति को मन प्रधानमंत्री जी के हुए के हमेशा बेहद करीब रहे। Marching proudly, the National Service Scheme contingent, led by Contingent Commander Mr. Deepak from Punjab. Comprising 148 volunteers launched in 1969, Gandhiji's birth centenary year, with nearly 40,000 volunteers, the scheme now has more than 39 lakh volunteers spread across the country. The NSS movement, a silent revolution in constructive community work. It has made significant contributions in the field of literacy, environment preservation and health education. पूरे कर्तव्य पथ पर सशक्त सक्षम सेना की ताकत के हुंकार का स्वर भरते, जय जन्मभूमि की धुन से ललकार भरते कि बन चुकी है भारतीय सेनाएं आज विश्व का सिरमौर। हमने डरना कभी न जाना आंधी से तूफान से, देखो हम बढ़ते जाते हैं कैसे अपनी शान से। यहाँ आपके सामने मद्रास रेजिमेंटल सेंटर, सिख रेजिमेंटल सेंटर, पावर रेजिमेंटल सेंटर एवं जम्मू कश्मीर लाइट रेजिमेंटल सेंटर का संयुक्त बैंड दस्ता। इसकी कमान सूबेदार मेजर प्रतिशत संभाल रहे हैं। इस दस्ते में 94 संगीतकार शामिल हैं। Now coming up, the line of beautiful tableaus highlighting the theme Swarnim Bharat Virasat aur Vikas. First up, the tableau by the Ministry of Social Justice and Empowerment. It highlights the Indian Constitution as the foundation of the nation's legacy. Tableau features the Zebu bull, the Ashoka pillar and the rotating emblem. It also features live figures representing diverse professions and a special dance sequence that celebrates equality and the binding spirit of the Constitution. जौहर भारत जनजातीय कार्य मंत्रालय की झांकी जनजातीय गौरव वर्ष को प्रस्तुत करती हुई समाज सेवक भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के प्रति देखिए जनजातीय लोकाचार और जनजातीय नारा जल जंगल जमीन। Next on Kartavya Path we have a very vibrant and festive tableau from Goa, which has made the golden beaches of Goa come alive right here on Kartavya Path. The tableau has the theme Swarnim Bharat Virasat aur Vikas, and it highlights
Sivaja, Kaviyat and Goa School District. और गोवा के बाद उत्तराखंड की झांकी विषय वस्तु सांस्कृतिक विरासत और साहसिक खेल पर आधारित। झांकी में पारंपरिक पोशाक में एक महिला को उत्तराखंड की प्रसिद्ध एपण कला को सृजन करते दिखाया गया है। साक्षरता दर में सुधार और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों को भी इसमें दर्शाया गया है। इसमें कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल को भी दर्शाया गया है जहाँ भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया। Going on next, the Jharkhand tableau showcasing Swarnim Jharkhand, a tradition of heritage and progress. The tableau pays tribute to Sir Ratan Tata and Tata Group's significant contributions to Jharkhand's development, symbolizing advancements in educational infrastructure, industrial progress and urbanization, also featuring Sarai art. फलेगी महिलाएं और फलते फूलते रहेंगे बच्चे तो राष्ट्र भी फलेगा। जी हाँ, आपके सामने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की झांकी महिला नेतृत्व द्वारा विकास और विकसित भारत 2047 में महिलाओं की भूमिका को दर्शाते हुए। पढ़ाती लिखाती बीमारी से बचाती कुपोषण को बाहर का रास्ता दिखाती अंबर से ऊंची उड़ाने लगाती जब मैं तिरंगा उड़ा फहराती हम देश को दस्तूर हमारे अमृत पीढ़ी। विभिन्न रंगों की छटा बिखेरती अगली झांकी हम देख रहे हैं गुजरात की आनंदपुर से एकता नगर विरासत की विकास की विषय पर केंद्रित यह झांकी रेखांकित करती है कैसे गुजरात ने अपनी विरासत को संजोए हुए विकास के क्षितिज को छुआ है। झांकी में 12वीं सदी के बड़नगर के ऐतिहासिक कीर्ति तोरण से लेकर 21वीं सदी के इंजीनियरिंग चमत्कार और सरदार पटेल की 150वें जयंती पर दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बीच गुजरात की सांस्कृतिक और विकास यात्रा को दिखाया गया है।
These toys rely on the Nkuru tree and represent sustainability, imagination and artistry, preserving the legacy of Andhra Pradesh's artisans for future generations. हरे भरे खेतों में सरसों के लहलहाते फूल, चुट्टे के बोल व फुलकारी के चमकीले रंग। आइए अब सबको ले चले हम पंजाब, हम सबके साथ। The Tableau of Punjab displaying the theme inlay art and rich craftsmanship. It symbolizes the Punjab's vibrant musical legacy and depicts Sufi saint Baba Sheikh Farid Ji sitting under a tree composing hymns included in the Guru Granth Sahib. और पंजाब के बाद नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की झांकी नवीन भारत के उदय पर आधारित। झांकी की मुख्य विषय वस्तु प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, जो रूफटॉप और सौर स्थापना द्वारा भारत के दूर दराज के इलाकों को रोशन कर रही है। लखपति दीदी की विषय वस्तु पर आधारित झांकी ग्रामीण विकास मंत्रालय की, जिसमें शिक्षा के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को रेखांकित किया गया है। लखपति दीदी योजना है सशक्त और समृद्ध भारत बनाने का Approaching the saluting days now is the tableau of Uttar Pradesh displaying the theme Swarnim Bharat, विरासत और विकास। महाकुंभ और 76वां गणतंत्र दिवस एक अविस्मरणीय संगम। शंखनाद से अर्थव्यवस्था का श्रद्धा और शक्ति का प्रमाण आज कर्तव्य पथ से गूंजा उत्तर प्रदेश का गुणगान। सर्वसिद्धि प्रदः कुंभः सर्वसिद्धि प्रदः कुंभः स्वर्गलोक की आभा तेरी तीर्थराज के आंगन में झूम रहे हैं साधु संत जन पुलक भरा है तन मन में भव्य दिव्य महाकुंभ सर्वसिद्धि प्रदायकः दया करारस्ति ब्रह्मो लोक विश्वतः। On Kartavya Path next, the tableau of Bihar. Bihar's tableau celebrates the state's rich traditions of knowledge and peace. From ancient times, Bihar has been a land of wisdom. The tableau features Lord Buddha in a meditative Dharma Chakra Mudra, the sacred Bodhi tree. शून्यता शून्यतायन पृथग्रूपं यद्रूपं स शून्यता या शून्यता तद्रूपं एवमेव
झांकी वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग की। झांकी में बैंकिंग सेवाओं के विकास को दर्शाया जा रहा है। झांकी में घूमता हुआ सुनहरा सिक्का भारत की बेहतर अर्थव्यवस्था को दर्शा रहा है। झांकी में जटिल रूप में डिजाइन पोटली धन समृद्धि और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दर्शा रहा है। झांकी में एटीएम का प्रयोग करती महिला देश में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार से देश के प्रत्येक वर्ग के लिए वित्तीय पहुंच में सुधार को दर्शा रही है। Next up, the tableau from Madhya Pradesh. It showcases the historic return of cheetahs after 70 years in the Kuno National Park. The tableau features the success of the cheetah conservation project, the rich biodiversity of the park, and the cheetah mitra, signifying the help of local residents, all together giving Madhya Pradesh its title of the cheetah state. भारतीय मौसम विभाग मौसम के बदलते रंग 150 वर्षों से आईएमडी है सन। अगली झांकी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत मौसम भवन के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाती है। जीवन रक्षा और सुरक्षा का अभियान चलाया है। मौसम विभाग बैठ जाओ, इसलिए खड़े होके टावर आता है। The next tableau showcased by Department of Animal Husbandry, highlighting the theme legacy and development of Swarnim Bharat and dedicated to the indigenous cows of India, showcasing their contribution to sustainable rural development and their enduring legacy. तू ही सुरभि तू ही बगला घर घर की है जान, बारंबार तुझे प्रणाम, तुझे प्रणाम, तुझे प्रणाम, गौरैया तुझे प्रणाम, तुझे प्रणाम। दूध दही ही और माखन, अमृत काल में अमृत कर आंगन, हर योग में संयोग में माँ तू ही आती का, नंदन श्यामा तुझे प्रणाम। और कर्तव्य पथ पर अगली झांकी त्रिपुरा राज्य की शाश्वत श्रद्धांजलि के विषय पर आधारित प्राचीनतम अध्यात्म से एकाकार करते हुए इस झांकी में खाची पूजा को दिखाया गया है, जिसमें 14 देवी देवताओं की अर्चना और स्तुति की जाती है।
की अगली झांकी आधारित है वहाँ के ऐतिहासिक लकुंडी मंदिर पर। लकुंडी को शिलाशिल्प का पालना कहा जाता है। इस झांकी में नक्काशीदार लक्ष्मी नारायण मंदिर, भगवान शिव को समर्पित काशी विश्वेश्वर मंदिर तथा अलंकृत स्तंभों वाला नन्नेश्वर मंदिर दर्शाया गया है। Next is the tableau of the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, showcasing its rich wildlife, fishing culture and progress in various fields, depicting Daman's walk-in aviary, the yellowfin tuna and the smart fishing harbour system, reflecting the region's natural beauty, accompanied by the multi-look विभाग से झांकी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे विकास को दर्शा रही है। हर क्षेत्र में डिजिटाइजेशन के लाभ को भी उजागर कर रही है। झांकी शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी उपायों में हुए प्रयासों को भी दर्शा रही है। Showcases the rich cultural heritage, architectural excellence and artistic tradition. The tableau highlights empowering rural artists, fostering national and international collaboration, featuring terracotta tempered and traditional art forms. और अगली झांकी चंडीगढ़ की सिटी ब्यूटीफुल थीम पर आधारित चंडीगढ़ की समग्र बसावट, निर्माण योजना, हरियाली और शांतिपूर्ण जीवन शैली को प्रदर्शित करती है। And next we have the tableau from the Ministry of Culture, displaying the magnificent yards and ancient Tamil string instrument, the Kumhar's wheel, representing transformation, and the culprits morphing into a golden bird, symbolizing India's cultural resources and its rise as a creative economic powerhouse. विरासत भी विकास भी के मंत्र से प्रेरित संस्कृति मंत्रालय की यह झांकी
भारत की विविधता और रचनात्मकता का उत्सव है। झांकी के प्रारंभ में प्राचीन तमिल वाद्य जाड़ हमारी परंपरा का प्रतीक है। मुख्य आकर्षण एक काइनेटिक कल्प वृक्ष है जो रचनात्मकता की ऊर्जा से सोने की चिड़िया में रूपांतरित होता है। ट्रेलर पर लगे डिजिटल स्क्रीन रचनात्मक। अगली झांकी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की संविधान की 75वीं वर्षगांठ के महान अवसर को भव्यता से प्रदर्शित करती हुई झांकी में भारत के संविधान को दिखाया गया है, जो भारत का सर्वोच्च कानूनी दस्तावेज और दुनिया का विशालतम लिखित राष्ट्रीय संविधान है। संविधान प्रस्तुत करते समय डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, As the ultimate goal is concerned, I think none of us need have any apprehension. Our difficulty is how to make the heterogeneous mess. और अब संस्कृति मंत्रालय द्वारा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर श्रद्धांजलि स्वरूप भारत की जनजातीय और लोक कलाओं की समृद्ध और विविधात्मक विरासत और नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। भारत की संस्कृति और विरासत की विविधता को दर्शाती है। यह नृत्य रचना विकसित भारत, विरासत की, विकास की और एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर आधारित है। जय जय मम भारतम गीत की रचना श्री सुभाष सहगल ने की। संगीत प्रख्यात संगीतकार श्री शंकर महादेवन ने दिया है और पार्षद स्वर श्री हरीश मानी का है। नृत्य रचना की परिकल्पना एवं निर्देशन संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्षा डॉक्टर संध्या त्रेजा ने किया है और सहायक निर्देशक हैं श्री सुभाष नकाशे, श्री अंकुर पठान, श्री कल्पेश दलाल, श्री संजय शर्मा और श्री रंजीत गोगोई। 5000 लोक और जनजातीय कलाकारों ने जो अपनी मौलिक और प्रामाणिक वेशभूषा में देशज आभूषण, मुकुट, मुखौटे पहन रखे हैं, देशज तलवार और ढोल जैसे पारंपरिक शस्त्रों एवं वाद्यों के साथ अपने अपने नृत्य रूपों को जीवंत करने वाले डांस होगा। इस नृत्य प्रस्तुति को और अधिक दृश्य समृद्ध बनाने में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के विशेषज्ञों की टीम का भी बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने 60 से अधिक प्रॉप्स डिजाइन किए हैं, जिनमें वाद्य सज्जा, पुष्प तत्व, मपेट्स, अंबाला कावड़ी, कुकावड़ी आदि शामिल हैं, जो विशिष्ट कला रूप और समुदाय से जुड़े मूल सौंदर्य को जीवंत बनाते हैं। देवियों और सज्जनों, 76वां गणतंत्र दिवस, संविधान के 75 वर्ष और प्रयाग वर्ष का महान एक अद्भुत संयोग। यह एक शुभ संयोग है कि ये तीनों अनुष्ठान एक ही कालखंड में समायोजित हैं और हम भाग्यशाली हैं कि हम सब इन ऐतिहासिक उत्सवों के साक्षी बन रहे हैं। एक महाकुंभ प्रयागराज में आस्था का, एक महाकुंभ दिल्ली में गणतंत्र का राष्ट्र निर्माण का, महाकुंभ में जहां घाटों पर भक्ति के स्वर गूंज रहे हैं, कर्तव्य पथ पर संगीत की धुनें और नृत्य की भाव का प्रवाह हो रहा है। संगम की पवित्रता आज के इस उत्सव में समाहित। विश्व की एक सबसे प्राचीन सभ्यता और विश्व की सबसे प्रगतिशील सभ्यता दोनों ही हैं मम भारतम, क्योंकि विरासत के नाम पर न हम विकास को दरकिनार करते हैं, न ही विकास की दौड़ में हम विरासत को पीछे छोड़ते हैं। साथ है हमारे युवाओं की असीमित ऊर्जा और नारी शक्ति का अखंड योगदान। लेते हैं हम प्रेरणा हमारी अद्वितीय लोक कलाओं से, करते हैं असीम सम्मान हमारी जनजाति संस्कृतियों का। तभी तो हम ही नहीं, विश्व सारा कहता है जयति जय जय भारत जयति जय जय मम भारत मम भारत भारत
जय जय जयति जय जय जयति जय मम भारतम ओ तेरी जय जय तेरी जय मम भारतम तेरी जय मम भारतम तेरी जय मम भारतम देवभूमे वेदभूमे त्यागभूमे मातृभूमे गुणगान तेरा मम भारतम करुगान तेरा मम भारतम शतनार तेरा मम भारतम सम्मान मेरा मम भारतम तेरी जय मम भारतम तेरी जय मम
जयति जय जल्दी खाली 12 फीट की सीढ़ी से राष्ट्रपति महोदय को सैल्यूट करने वाली पहली महिला अधिकारी का रिकॉर्ड बना रही है। और ये देखिए 115 टेटल्स के साथ का सलाम लेकर आ गए हैं कैप्टन आशीष राणा, जिन्होंने प्रभावशाली सैल्यूट मारे राष्ट्रपति महोदय को। वाह क्या बात है। और इनके ठीक पीछे पूरे प्लेन से स्टंट करते हुए हृदय में धड़कती देशभक्त के गजब का संग्राम गिराते हुए और बताते हुए कि मानवता से लड़ना है भारत, नए नए आसमान छूना है भारत। और अब शीघ्र ही आप देखेंगे कैप्टन डिम्पल भाटी को जो 12 फीट की लैडर के ऊपर से राष्ट्रपति महोदय को सैल्यूट देती हुई रुकूंगी नहीं, हुंकार करूंगी, सपनों को साकार करूंगी, हौसलों के पंख लगाकर दूर तक उड़ूंगी। साथ ही सिग्नल वाटर फॉर्मेशन के माध्यम से अपने निशान को बड़ी शान से लहराते हुए और बताते हुए कि भारत माँ के सपूत है, हम माँ की रक्षा में सीमा ताने खड़े हैं। और ये देखो योग और व्यायाम करते हुए क्या संतुलन, क्या एकाग्रता, ये बता रहे हैं फिट रहेगा इंडिया तभी तो खिलेगा इंडिया। और अब देखिए डेविल डाउन फॉर्मेशन, हम हौसलों के शेर हैं, दिल के दिलेर हैं, पर्वत हमारे सामने मिट्टी के ढेर हैं। साथ ही थ्री पीक फॉर्मेशन सिग्नल कोर की संचार व्यवस्था का संदेश देते हुए और बताते हुए कि वैज्ञानिक तकनीकों वाले हमले आए नए उजाले। और अब हमारे वीर गति को प्राप्त शूरवीरों को आज की गौरवान्वित दिवस पर श्रद्धांजलि देते हुए हमारे डेयरडेविल्स बताते हुए कि आपके बलिदान को हम अपने सिर का ताज बनाएंगे और रक्षा में सदैव तत्पर रहेंगे। शत्रु जीत फॉर्मेशन बताते हुए कि कोटि बाधाओं को सहकर हम सामना करेंगे डटकर, अब रुकेंगे हम मंजिल पर पहुंचकर, ऐसी सुनाएंगे सबको तान की यही है भारत की शान। अब मर्क्यूरी पीक फॉर्मेशन में हमारे डेयरडेविल्स ये कोर ऑफ सिग्नल के अद्भुत संतुलन, कौशल और लगन को दर्शा रहे हैं कि बर्फीले श्वेत सियाचिन में, रेतीले गर्म मरुस्थल में हर जगह डटे हैं ये। और अब इनको वॉरियर्स पूरी तरह से मुस्तैद सामंजस्य से आगे बढ़ते हुए पहले निगाह सटीक संचार, चूक की कोई गुंजाइश नहीं, जैसा नाम वैसा गुण। और ये देखिए 9 मोटर बाइक पे 33 डेयरडेविल्स डेविल का संकल्प हिमालय है, हर डेविल की धड़कन हिमालय है। आगे आए तो सही, बाधाएं आए तो सही। हम The saluting days now, please turn your eyes towards the skies, the Ajay formation. पीछे वाला Synchronized formation of Air Force pilots, the heroes of the sky, their bravery and valor forever up in high. Ladies and gentlemen, brace yourselves to witness now the Satluj formation, named after the AN-32 transport aircraft, also regarded as the workhorse of the Indian Air Force. Formation leader today is Wing Commander Pinak Ashok Porgule, flying the AN-32 of 48 Squadron, and it is flanked by 2 Dornier aircraft of 41 Squadron, also known as the Otters. They are flying with the motto Samay Par Sahayata. Satluj, as the name suggests, is the formation symbolizing strength, resilience and the vital role of these aircraft. Ladies and gentlemen, this Satluj formation. सतलज फॉर्मेशन के बाद कर्तव्य पथ पर पहली बार भारतीय तटरक्षक का डॉर्नियर एयरक्राफ्ट रक्षक नेतृत्व में 1978 से स्थापित भारतीय तटरक्षक ने
अब तक लगभग 12,000 जानों को बचाया है। स्वयं रक्षा माह या वी प्रोटेक्ट के अनुरूप 154 समुद्री जहाजों और 78 विमानों के बेड़े के साथ भारतीय तटरक्षक सबमर्जी ऑपरेशन के संचालन से समुद्र में और समुद्र से खतरों को मुकाबला करने में सक्षम है। लेडीज एंड जेंटलमैन, सलामी मंच के ऊपर से गुजरता हुआ रक्षक फॉर्मेशन। And what an impeccable display. Ladies and Special Ops Squadron number 77 Squadron, also known as the Whale Vipers. The motto of this squadron is Praharati Pratihanti, or Strike to Kill. Along with it, we see two C-295, the latest tactical transport aircraft of the Indian Air Force from 11th Squadron. They will be flying in big formation. These aircraft are true marvel of modern aviation, symbolize the spirit of innovation. Ladies and gentlemen, on saluting days now, Arjun formation. प्रहरी के आदर्श वाक्य के साथ आकाश में दहाड़ते हुए कमान संभाली है ग्रुप कैप्टन मनोज यादव ने। Ladies and gentlemen, the Varuna formation. And what a magnificent display exemplifying unmatched might, a fitting tribute to और नव को गुंजायमान करते हुए 24 स्क्वाड्रन के सुखोई 30 MKI ध्येयवाद नाविजित निवर्तनम कमान संभालिए ग्रुप कैप्टन ग्रुप कुमार। लेडीज एंड जेंटलमैन, and the squadron continues to shine and accentuate their motto, Shakti Vijayate. Ladies and gentlemen, on saluting days now, the Amrit formation. ladies and gentlemen, eyes on the sky please as you witness the golden arrows in a Vajrang formation. And what a marvelous formation. Its presence still reserves fighting for their country without any fear. Ladies and gentlemen, approaching the saluting days now, the Trishul formation. और त्रिशूल की प्रचंडता के बाद देवियों सज्जनों विजय नाम करता हुआ विजय स्क्वाड्रन का ये जहाज वर्टिकल का अनुपम गान। ऊपर की तरफ जाए। Eyes on the sky please as